کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ میں ایک غریب آدمی تھا۔ میں نے ہر طرح کی محنت مزدوری کی اور اپنی غربت مٹانے کی پوری کوشش کی، لیکن شاید قسمت میں ہی مشکل وقت لکھا تھا۔ پیسوں کی غریبی کی وجہ سے میں رشتوں کے معاملے میں بھی غریب ہو گیا۔ میری جان سے پیاری بیوی میرے بچوں کو لے کر مجھے چھوڑ گئی۔ وہ حالات سے تنگ آ گئے تھے اور اب غربت سے نجات چاہتے تھے۔ بیوی بچوں کے جانے کے بعد میں بالکل تنہا ہو گیا تھا، اور پھر کچھ سالوں کے بعد اچانک میری قسمت نے پلٹا کھایا اور میں لکھپتی بن گیا۔ جب پیسے کی کمی نہ رہی تو مجھے تنہائی کا احساس ستانے لگا، اور یوں میں روز ہی ایک کم عمر لڑکی کو اپنے گھر لے آتا اور اپنی تنہائی مٹانے کی کوشش کرتا۔ ایک روز مجھے سڑک پر ایک حسین اور کمسن لڑکی نظر آئی۔ میں جانتا تھا کہ رات کے اس پہر اس لڑکی کا اس سڑک پر کھڑے ہونے کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے۔ میں نے گاڑی روکی تو وہ خود ہی گاڑی میں آ بیٹھی اور میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ ابھی میں نے اس کی شرٹ کو ذرا سا سرکایا ہی تھا کہ میری نظر اس کے بازو پر پڑی، جہاں ایک زخم کا نشان واضح تھا۔ یہ نشان دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ یہ لڑکی تو میری ہی سگی۔ میرا نام شاہزین ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میری شادی ہوئی تو میرے حالات بہت زیادہ خراب نہیں تھے۔ میں جتنا کماتا تھا اس میں ہم دونوں میاں بیوی کا گزارا ہو جاتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کی، اور اس کے بعد ہمارے خرچوں میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن میری کمائی نہ بڑھ سکی، کہ جس کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ میں ایک کرائے کے گھر میں رہتا تھا۔ میری بیوی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میرے خراب حالات میں میرا ساتھ نہ دے سکی، اور اپنے بچوں کو مفلسی کے حال میں دیکھ کر میں نے بھی اسے جانے سے نہ روکا، اور اس طرح ہم دونوں کی علیحدگی ہو گئی۔ آج اتنے سالوں کے بعد میں نے جب ایک کمسن لڑکی کو اپنے دل بہلانے کی غرض سے اپنے گھر لے کر آیا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ تو میری بیوی بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور میں غریبی سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ میرے پاس کرنے کے کوئی کام نہیں تھا۔ میں تھوڑا بہت جو کما رہا تھا، ڈپریشن کا شکار ہو کر میں نے وہ کام بھی چھوڑ دیا تھا۔ 2 سال کیوں ہی در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد مجھے ایک ایسا کام ملا جس کی وجہ سے میں راتوں رات امیر ہو سکتا تھا۔ بیوی اور بچوں کی جدائی نے میرا ہی دماغ خراب کر دیا تھا، لہٰذا جب مجھے کام ملا تو میں نے اسے کرنے کو برا نہ سمجھا۔ غریبی نے میرے اندر سے اچھائی برائی کا فرق مٹا دیا تھا۔ اب میں بس پیسے کمانا چاہتا تھا۔ میں ایک ایسے گروہ کا حصہ بن چکا تھا جو معصوم بچیاں اور بچوں کو اغوا کرتے ہیں اور انہیں آگے فروخت کر دیتے تھے۔ ایک دن ایک بچی اپنے باپ کے ساتھ سودا لینے بازار آئی ہوئی تھی، اور میں بازار میں ہی تھا کہ میں نے دیکھا اس کا باپ اسے چھوڑ کر تھوڑا آگے بڑھ گیا، تو میں نے لمحوں میں اسے پیچھے سے غائب کر دیا اور اسے لے جا کر اپنی گاڑی میں ڈال دیا، اور خود واپس دکان پر جا کر دیکھنے لگا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے باپ نے بڑا شور مچایا اور خوب ہنگامہ کھڑا ہوا، لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی وہ بچے کو نہ ڈھونڈ پایا۔ اس وقت شاید اس کی آہیں عرش سے ٹکرا رہی تھی، لیکن میں بے حس بنا کھڑا تھا، کیونکہ مجھے اب کسی بھی طرح پیسے کمانے تھے۔ اسی طرح بچوں کو اغوا کرتا چلا گیا اور بہت سے ماں باپ کی گود میں نے اجاڑ دی۔ اس کے پیچھے صرف میری بیوی اور بچوں کا چلا جانا ہی نہیں تھا، بلکہ میں بچپن سے ہی کچھ ایسے حالات دیکھتا آیا تھا کہ میرے اندر ایک بے حسی جنم لے چکی تھی۔ آج میری بیوی اور بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو میری اس بے حسی نے مزید شدت اختیار کر لی۔ اب مجھے معصوم بچے بچیوں کو اغوا کر کے انہیں آگے فروخت کرنے میں کوئی بھی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی میرا دل کانپتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا 2 نمبر کا بیٹا تھا۔ مجھ سے بڑی ایک بہن تھی۔ جب میری پیدائش ہوئی تھی اس سے پہلے میرے باپ کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ ہمارا شمار امیر گھرانوں میں ہوتا تھا، لیکن میری پیدائش ہوئی تو اچانک ہی راتوں رات میرے باپ کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ میرے باپ کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، کچھ بھی نہ بچ سکا۔ بہت سے مزدور بھی جہاں بحق ہو گئے، جس کی وجہ سے میرے باپ پر کیس بھی ہو گیا، اور یوں ہمارے حالات ایک دم ہی بگڑ گئے۔ میرے باپ نے میری پیدائش کو اس سب کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس طرح میرے ساتھ میرے ہی گھر میں میرے باپ کا رویہ بہت خراب ہو گیا۔ میرے ساتھ میرے اپنے ہی گھر میں سوتیلوں جیسا سلوک ہونے لگا۔ میرا باپ جتنا بھی کماتا اب وہ میری بڑی بہن پر خرچ کرتا، اور میں اپنے ہی گھر میں مفلسوں والی زندگی گزار رہا تھا۔ ان سب حالات سے تنگ آ کر میں نے ایک دن اپنا گھر چھوڑ دیا اور دوسرے شہر میں جا کر کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کی محنت کے بعد مجھے ایک ٹھیکیدار کے پاس مزدوری کا کام مل گیا، اور یوں میں اپنی زندگی کی گاڑی کھینچنے لگا تھا کہ جب میری ملاقات شینا سے ہوئی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، وہ بھی ایک مزدور کی بیٹی تھی، اور اس طرح ہم دونوں نے محبت کی شادی کر لی۔ لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد ہمارے حالات کی وجہ سے میری اور شینا کی محبت جھگڑوں میں بدلنے لگی۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں کے بیچ دوریاں بڑھتی چلی گئیں۔ خدا نے ہمیں پہلی بیٹی سے نوازا تو میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس کے تمام خرچوں اور خواہشات کو کسی بھی طریقے سے پورا کر سکوں۔ میں نے 2 کے بجائے 3-4 مزدوریاں شروع کر دی۔ میں دن رات صرف تھوڑی دیر کے لیے ہی گھر آتا اور باقی سارا وقت مزدوری کا کام کرتا، لیکن شینا اب خوش نہیں ہوتی تھی۔ اسے ہر وقت یہی لگتا کہ میں نے جان بوجھ کر اسے اور اس کی بیٹی کو مفلسی میں رکھا ہوا ہے۔ ہمارے حالات بہت زیادہ خراب بھی نہیں تھے، لیکن شینا کا رویہ اسے مزید خراب بنا رہا تھا۔ وہ ہر بات پر مجھے یہی جتاتی کہ وہ میرے ساتھ بہت مشکل سے گزارا کر رہی ہے،
और मुझे अपनी बेटी की भी कोई फिक्र नहीं है, जबकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। इस तरह अल्लाह ने हमें दूसरी बेटी भी दी और उसके बाद तो शीना ने मुझसे बात करनी ही खत्म कर दी। जब भी बात होती तो सिर्फ पैसों के लिए बात करती, मुझे मेरी गरीबी के ताने मारती और लड़ाई झगड़ों से बात बढ़ते बढ़ते बहुत आगे निकल जाती। अब पहले जैसा हमारा रिश्ता नहीं रहा था, लेकिन मैं किसी भी तरह हमारे रिश्ते को बेहतर करना चाहता था, क्योंकि मैं शीना से बहुत मोहब्बत करता था। और अब बात सिर्फ शीना की नहीं थी, बल्कि अल्लाह ने मुझे 2 मासूम परियों से भी नवाजा था। मुझे अपनी बेटियों से भी बहुत मोहब्बत थी। मैं उनकी खातिर ही बेहद मेहनत कर रहा था कि मैं अपनी बीवी बच्चों को हर खुशी देना चाहता था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा था। मैं उनका पेट भर रहा था, उनकी जरूरियात पूरी कर रहा था, लेकिन फिलहाल मैं उनकी ख्वाहिशात पूरी करने के काबिल नहीं था। घर में आए दिन झगड़े होने लगे। शीना बहुत बदल गई थी। जब उससे मेरी शादी हुई तो वो उसी वक्त जानती थी कि मेरे हालात कैसे हैं, लेकिन उसके बावजूद हर गुजरते दिन के साथ शीना ने ये कहना शुरू कर दिया कि मैंने उसे धोखा देकर शादी की है, जबकि ये झूठ था। मैंने तो उसके साथ कोई धोखा नहीं किया था। वो पहले ही दिन सब कुछ जानती थी, मगर इस तब्दीली की वजह से मैं नावाकिफ था। मैं नहीं जानता था कि वो अचानक से इतना ज्यादा क्यों बदल गई है, जबकि वो खुद भी किसी अमीर घर से ताल्लुक नहीं रखती थी, बल्कि उसके बाप के घर में भी बिल्कुल वैसे ही हालात थे जैसे मेरे घर में थे। मैं पैसा कमाने के लिए ज्यादा वक्त घर से बाहर रहता था और बहुत कम आराम करने के लिए घर जाया करता था। इससे मेरे और शीना के दरमियान झगड़ों में भी कमी आ जाती थी, लेकिन इस बात से एक मसला ये हुआ कि मेरी बेटियां मुझसे दूर हो गई थी। मेरी बेटियां 4-5 साल की थी, क्योंकि मैं उन्हें पूरा वक्त घर में नजर नहीं आता था, तो वो सिर्फ अपनी माँ की होकर रह गई थी और शायद उनकी माँ ने भी उन्हें मुझसे दूर कर दिया था। मैं बस अपनी बीवी बच्चों को खुशियां ही देना चाहता था और मुझे इस बात का बहुत दुख था कि बहुत मेहनत के बावजूद भी मैं नाकाम हो रहा हूँ। एक दिन मजदूरी करते वक्त मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई और मैं जल्दी घर वापस आ गया। तो उस दिन मुझ पे ये राज खुला कि शीना मुझसे इतना क्यों बदल गई है। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी शीना हमारे ठेकेदार बाबू के साथ मसरूफ है, उसके साथ गुलछड़े उड़ा रही है। मेरी समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, और जब समझ आया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी बीवी चंद पैसों की खातिर मुझे धोखा दे रही थी। मैं मानता था कि मैं उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सका, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं उसकी जरूरियात से भी गाफिल था। मेरे ठेकेदार ने हमारे हालात का भरपूर फायदा उठाया था और कुछ पैसों के एवज उसने मेरे घर की पूरी खुशियां खरीद ली थी। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो ठेकेदार बाबू और शीना को एक साथ देखकर मेरा खून खौल उठा। मैं उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो मेरी बीवी शीना बीच में आकर उसने मुझसे तलाक का मुतालबा कर दिया। मैंने अपनी बेटियों की तरफ देखा तो वो भी ठेकेदार के साथ ऐसे खेल कूद में मसरूफ थी जैसे वही उनका बाप हो। मैंने गुस्से में शीना को तलाक दे दी और यूं हमारा हंसता बसता घर सिर्फ इसलिए उजड़ गया कि मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाता था। शीना ने मेरी मोहब्बत से ज्यादा पैसों को अहमियत दी थी और वो उसी वक्त ही ठेकेदार बाबू के साथ मेरा घर छोड़कर चली गई। मैंने अपनी बेटियों को रोकना चाहा, लेकिन वो भी अपनी माँ के साथ चली गई और यूं मैं गरीबी के साथ साथ रिश्तों से भी महरूम हो गया था। 2 साल दरबदर की ठोकरें खाने के बाद एक दिन मैं खुदकुशी करने के ख्याल से घर से निकला तो अचानक ही मेरा टक्कर एक ऐसे शख्स से हो गया जिसने मेरी हालत देखकर अंदाजा लगाया कि मैं किसी ज़हनी कैफियत का शिकार हूँ, और उसने मुझे अपने साथ काम करने की पेशकश की और मैंने ये जाने बिना ही कि क्या काम करना है उसके साथ काम करने की हामी भर ली। और आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर यह राज खुला कि मैं एक ऐसे ग्रोह के साथ जुड़ चुका हूँ जो मासूम बच्चों को अगवा करते हैं और दूसरे शहरों में फिरोख्त का काम करते हैं, जहाँ उनको भिखारी बना दिया जाता है और लड़कियों को थोड़ा बड़ा करने के बाद उनसे गलत काम करवाए जाते हैं। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था जो मुझसे पूछता कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उस ग्रोह के साथ काम करना शुरू कर दिया। मैं बेहिसी के उस मकाम पर जा पहुंचा जहाँ मुझे किसी माँ बाप का दर्द महसूस नहीं होता था। मेरी अपनी औलाद मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरी बीवी ने मुझे मेरी औकात दिखा दी थी। मैं बहुत टूट चुका था, इसीलिए गुमराही के रास्ते पर चल पड़ा। अब मैं बहुत पैसा कमा रहा था और देखते ही देखते 1 साल के अंदर मेरा अपना घर और गाड़ी सब हो गया। मेरे पास पैसों की कोई कमी न रही, लेकिन अब तन्हाई का एहसास मुझे मारने लगा। मुझे अपनी बीवी शीना भी अक्सर याद आती। मैंने उसकी याद को मिटाने के लिए और अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए एक नया रास्ता ढूंढ लिया था। अब मैं हर रोज किसी न किसी जवान लड़की को अपने घर ले आता और उसके साथ अपनी तन्हाई बांट लेता। मेरी जिंदगी एक तरह से मुकम्मल हो चुकी थी। अब मेरी जिंदगी में शीना की कोई याद भी नहीं थी, बल्कि अब तो मैं हर रात ही किसी न किसी कम उम्र लड़की और हसीन लड़की के साथ अपने अरमान पूरे कर लेता। लेकिन अचानक ही मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी हलचल मची कि मैं आसमान से सीधा जमीन पर मुंह के बल आ गिरा। एक रात मैं उसी सड़क से गुजर रहा था जहाँ रात को जवान लड़कियाँ खड़ी हुआ करती थी, जिनका मकसद यही होता था कि वो दूसरे मर्दों के साथ जाने के लिए खड़ी होती थी। मुझे सड़क पर एक कमसिन और हसीन लड़की दिखाई दी जिसकी उम्र कोई 14-15 साल थी। उसे देखते ही मेरा दिल उस पर आ गया और मैंने उसके करीब आकर गाड़ी रोक दी। वो भी शायद किसी ग्राहक के ही इंतजार में थी। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी तो वो फौरन ही दरवाजा खोलकर गाड़ी में आ बैठी और मैं उसे लेकर खुशी खुशी अपने नए घर में चला आया। मेरा घर बहुत बड़ा था, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब मैं उस जैसी कितनी ही लड़कियां खरीद सकता था। जब मैं उसे अपने साथ अपने कमरे में लाया
तो अच्छे से खाना खिलाया, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां ऐसी खाली पेट ही हुआ करती थी, क्योंकि ये काम करने के लिए भी उनकी भूख ही उन्हें मजबूर करती थी। उसे खाना खिलाने के बाद मैं उसके करीब किया और अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए और अपने जज्बात को पूरा करने के लिए जैसे ही मैंने उसकी कमीज को हल्का सा सिरकाया तो उसके बाजू पर एक उभरा हुआ जख्म का निशान मुझे साफ नजर आया और जैसे मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं इस निशान को बहुत अच्छी तरह पहचानता था और मुझे कुछ ही लगने लगे ये समझने में कि जो मेरे साथ मेरे घर आई है और जो मेरे सामने बैठी है और जिसके साथ मैं अपने जज्बात को और अपने एहसासात को मिटाने की कोशिश कर रहा था, वो तो मेरी अपनी ही सगी बेटी थी। मैं जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने दोनों हाथों से अपने बाल पकड़कर नोचने शुरू कर दिए। वो लड़की भी शायद अब मुझे पहचान गई थी और मेरे पास ही बैठ गई थी। हम दोनों की सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। बहुत देर तक हम दोनों साथ बैठे रोते रहे। सालों की जुदाई के बाद आज जब वो मेरे सामने आई तो वो भी ऐसे हाल में कि मैं उसे अपने साथ अपने घर एक इंतहाई गलत मकसद के लिए लाया था। हम दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। जब हम दोनों ने हकीकत को तस्लीम कर लिया तो मैंने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया और वो भी जैसे मेरा साथ पाकर बच्चों की तरह खुश होने लगी। वो बच्ची ही तो थी, उसकी उम्र अभी सिर्फ 14 साल थी और उसकी किस्मत ने ऐसा कौन सा खेल खेला था कि वो इस तरह आधी रात को सड़क किनारे अपना वजूद बेचने के लिए खड़ी हो चुकी थी। मैंने उसे बहुत प्यार किया और आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे कुछ सालों की रवायात सुनाने लगी। जब मेरी बीवी शीना मुझे छोड़कर गई तो वो जाते जाते मेरी 2 मासूम परियों को भी अपने साथ ले गई। मुझे छोड़कर जिस ठेकेदार का इंतखाब उसने किया था वो ठेकेदार कुछ अरसे तक उसकी खूबसूरती के लिए पैसे भरता रहा और कुछ अरसे के बाद जब उसका दिल भर गया तो वो उसे सड़क पर ही छोड़ गया। मेरी बीवी जो मेरे घर में इज्जत से मेरी दी हुई छत के नीचे मेरी हिफाजत में रहती थी, एक पराई मर्द पर भरोसा करने के बाद हर तरह की छत से महरूम हो चुकी थी। कुछ वक्त के पैसे की रेल पेल को देखकर उसने इज्जत की रूखी सूखी रोटी को छोड़ दिया था और इस लालच ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया। उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था और न ही खाने के लिए रोटी। दोनों बच्चियों के साथ आधी रात को वो सड़क पर आ गई कि जब कुछ औरतों ने उसे देखकर हमदर्दी का इजहार किया और उसे यकीन दिलाया कि वो उसकी मदद करेंगी। मेरी बीवी शीना दुनिया की तरह बहुत चालाक नहीं थी, बस वो गरीबी के हाथों तंग आकर गलत रास्तों पर चल निकली थी। मेरी बीवी उन औरतों की बात मान गई और वो औरतें उसे अपने साथ वहाँ ले गईं जहाँ दिन सोते हैं और रातें जागती हैं। मेरी बीवी जाने अनजाने में एक ऐसी जगह पहुँच गई थी जहाँ कोई भी शरीफ औरत कभी कदम नहीं रखती और यहाँ से उसकी असल बर्बादी शुरू हो चुकी थी। उन लोगों के जाल में मेरी बीवी बच्चे बुरी तरह फंस गए। मेरी बीवी शीना एक खूबसूरत औरत थी और अब वो लोग उस खूबसूरती का भरपूर फायदा उठाने लगे। मेरी बीवी उस रास्ते पर पहुंच गई थी जहां पूरी रात दूसरों की तस्कीन का सामान बनती, जहां से फरार का कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे मेरी बेटियां बड़ी होने लगी उन्हें भी बाकायदगी से उस काम की तरबियत मिलने लगी और जैसे ही वो 12-13 साल की हुई तो उन्हें भी सड़कों की जीनत बना दिया गया। ना चाहते हुए भी मेरी बीवी मजबूर थी, वो उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी और यूं मेरी बेटियां भी इस धंधे का हिस्सा बन गई। मेरी बीवी को झांसा देकर ले जाने वाली औरतों ने कुछ ही अरसे में मेरी बीवी और बेटियों से इतना कमा लिया कि जिसकी कोई हद नहीं थी। मेरी बीवी और बेटियां बहुत खूबसूरत थीं, सिर्फ पैसों की लालच ने उन्हें गलत रास्तों पर धकेल दिया था। मेरी बीवी ने घर की 4 दीवारी और इज्जत को सिर्फ चंद पैसों की खातिर ठुकरा दिया। जब उसके पास पैसा आया तो वो घर की 4 दीवारी को तरस रही थी। अब उसे इज्जत की तलाश थी। वो किसी महफूज छत के नीचे अपनी बेटियों के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। मेरे सीने से लगी मेरी कमसिन मासूम बेटी ने मुझे रोते हुए अपने हालात बताए तो मैं काम किया। मेरी बेटियां अपने माँ बाप की गलतियों की भेंट चढ़ गई थी। मेरी बीवी ने उन्हें एक ऐसे आग में झोंक दिया था और मैंने दूसरों के बच्चों और बेटियों की इज्जतों का सौदा करके उस आग में मजीद तेल डालने जैसा काम किया था। जब मैंने उस लड़की के कंधे से कपड़ा सिरकाया तो उसके जिस्म पर वही गहरा काला जला हुआ निशान था जो बचपन में गलती से खेलते खेलते बावर्ची खाने में चले जाने की वजह से उसके हाथ पे आया था। उस निशान की वजह से मैं अपनी बेटी को पहचान गया था क्योंकि उस जले हुए निशान से उसके हाथ पर एक दिल जैसा बन गया था। जब मेरी बेटी ने मुझे अपने हालात के बारे में बताया तो मैंने उसी वक्त अपने रब से अपने तमाम गुनाहों के लिए माफी मांगी। मैं बहुत सारे माँ बाप की गोद उजाड़ चुका था और मेरी बीवी ने मेरे निकाह में होते हुए एक दूसरे शख्स के साथ ताल्लुकात बनाए थे। हम दोनों ही गुनाहगार थे और हमारी गुनाहों की सजा हमारी औलाद भुगत रही थी। मैंने अपने ताल्लुकात के जरिए अपनी बीवी शीना और अपनी दूसरी बेटी को इस जगह से निकलवा दिया और मैंने एक महफूज मकाम पर अपनी बीवी और बच्चियों को रहने के लिए जगह दे दी। अब मैं तौबा कर चुका था इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। पहले तो मुझे बहुत मुश्किलात पेश आई क्योंकि वो काम छोड़ने की वजह से मैं एक दफा फिर गरीब हो चुका था। मैंने अपने बच्चों की माँ शीना से, जो कि मेरी बीवी नहीं रही थी, जिसे मैं तलाक दे चुका था, मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें मेहनत करके फिर वही रूखी सूखी रोटी दे सकता हूँ। अपनी बेटियों की ख्वाहिशात पूरी करना अब फिर मेरे बस से बाहर होगा। तो उसने रोते हुए कहा कि मुझे अब कोई ख्वाहिश नहीं रही, अब वो सिर्फ इज्जत की रोटी चाहती है और वो भी बस अपनी बेटियों की हिफाजत चाहती है। मैं दोबारा मजदूरी करने लगा था। कभी मेरी बेटियां मुझसे मिलने आ जाती और कभी कभी मैं अपनी बेटियों से मिलने चला जाता। मैं और शीना एक दूसरे पर हैरान हो चुके थे, लिहाजा हमारे दरमियान कोई ताल्लुक अब नहीं था। शीना की लालच ने हमारा पूरा घर तबाह कर दिया था और पैसा मिलने के बाद मैं भी अंधा होकर गलत रास्ते पर चल निकला था। लेकिन हम दोनों को एहसास हो चुका था कि हमने बहुत बड़ी गलती की है और हमने अल्लाह से उसके लिए माफी भी मांग ली थी।
मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि अपनी बीवी का हलाला करवा के दोबारा उससे निकाह कर लो। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताएं, क्या मुझे अपनी बीवी का हलाला करवा कर दोबारा उससे शादी करनी चाहिए या नहीं? दूसरों का जो नुकसान मैं कर चुका था उसकी भरपाई मुमकिन नहीं थी। अब बस मेरी खुदा से यही दुआ थी कि हर बिछड़े को उसका अपना मिला दे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी